Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today we are again gonna go ahead with the topic of RUSA. पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है of UGC NET JRF पेपर 1 यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षा प्रणाली का एक टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफी दिनों से चल रहा है, मे बी सिंस पास्ट फ्यू डेज रूसा का। तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में और नॉलेज लेते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमने ओवरव्यू लिया था लेकिन हमने अच्छे से समझा नहीं था, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स किस सेंस में बात कर रहे हैं, क्या है ये, इसको समझेंगे। पिछले सेशंस में हमने क्या क्या किया है रूसा के बारे में, किसी को याद हो? आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग द लेक्चर्स। ऐसा नहीं एक बार रिवाइज किया और छोड़ दिया, यू नीड टू रिवाइज ऑन डेली बेसिस। ओके, रेगुलरली जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता एक वीडियो को पर्टिकुलरली रिवाइज करते रहो। कीप रिवाइजिंग अंटिल द टॉपिक एंड्स। तो एक वीडियो को आपने स्टार्टिंग वाली वीडियो को कम से कम 5 से 6 7 बार देखा, इनकेस अगर वो 7 डेज चल रहा है टॉपिक, राइट, या 3 डेज चल रहा है तो 3 डेज रिवाइज किया, तो एटलीस्ट वो आपके माइंड में काफी हद तक क्लियर रहेगा। यू कैन मेक इट डाउन योर नोट्स एंड फिर उससे भी रिवाइज उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्या है कि अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो वो आपको मेरे हिसाब से लर्न हो जाएगा। बहुत ही कम यू रहेंगे कि जिससे बहुत कम देयर विल बी लेसर प्रोबेबिलिटी, बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपको फिर से रिवाइज करना पड़ रहा है नोट से, है ना, या फिर एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लिया एंड यू आर जस्ट हैविंग द आंसर्स इन योर माइंड। क्लियर है? सो इस तरह से, सो व्हाट वी आर स्टडिंग हियर टुडे, वी आर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ रूसा and we are continuing with the topic because we have already started this topic. What is the full form of RUSA? That is Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan. I told you this is in Hindi and we have taken the acronym from Hindi full form, like Hindi terms. Now I've also told you the English translation of this Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan. What has it been? National, Uchtar is higher, Shiksha is education and Abhiyan is mission. So National Higher Education Mission. So higher education, national mission. This is a national mission on higher education kind of thing. Not that even. No, this is not the one because we'll study separately about those particular things. So this is only NHEM kind of. Okay. So in case the question comes like National Higher Education Mission, so it's same as RUSA, but the term RUSA would be mentioned there. We can't take it like iska English translation aise ho, so we'll take it that way. Generally nahi hoga. One more thing I've told you that RUSA ka version aa chuka hai, new version. What's the version? It's 2.0. We will study in coming sessions, not now again. Okay, so RUSA. I've told you it came in 2013, a quick kind of revision, it's a revision in quick. In 2013, the new version, sorry, it was launched in 2013, okay? And what else? It was launched in 2013, centrally sponsored scheme by the central government to provide the financial assistance or basically to have the improvement in the, higher education or campus life of state universities and its affiliated colleges, right? So by central for state. This is a program by central government for the state universities and all. Okay, but for the state, for their development, on the basis of which factors? I've told you so many factors. What are the factors? Do any of you know what are those factors? Those factors are equity. I've already mentioned it multiple times, but again you should know Samanta. Sometimes students सोचते equality होता है, equity भी समानता ही वे में जाएगा. Clear, the meaning would be समानता, है ना? Next is reach, or sometimes called as access, पहुंच, है ना? Then next would be excellence, and one more is quality, which matters a lot. And quality कैसी reason है जिसकी वजह से we just pursue in courses in IITs, IIMs, we are looking for these prestigious universities or like institutions, है ना? होता है ना ऐसा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सारी चीज फैक्टर्स पे दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, इवन दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स एंड इवन वो उनके स्टैंडर्ड्स ही हाई, दीज आर हैविंग हाई स्टैंडर्ड सेट. सो स्टूडेंट्स विश टू परस्यू फ्रॉम दीज. बट हम क्या सोच रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को क्यों ऐसे बैकवर्ड टाइप फीलिंग आ रही है, वहाँ के टीचर्स का एंड ऑल जो भी मैंने पूरा डिस्कशन किया है इसके बारे में, तो वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट लाई जाए अच्छे लेवल पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, चाहे वो एजुकेशन की स्ट्रीम में हो, चाहे वो किसी भी फैक्टर से रिलेटेड हो, सबको इम्प्रूव किया जाए. टीचिंग लर्निंग हो वहाँ भी, तो चाहे टीचिंग लर्निंग हो, दैट शुड ऑल्सो बी ऑफ दैट शुड ऑल्सो हैव क्वालिटी. तो ये सारे फैक्टर्स पे को स्ट्रेंथन अप करना है, उन सबको पे फोकस करना है और तब उन सबको मजबूत बनाना है ना. सो इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है वैसे भी, पहले कंपोनेंट्स की भी डिस्कशन मैंने किया था, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं,
उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूशनल हायरार्की भी एक टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ाया था, लास्ट सेशन ही उसके बारे में हुआ था, व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल हायरार्की। दैट इज संस्थागत पदानुक्रम। किस किस को याद है इसमें क्या क्या था? What was all there in institutional hierarchy? It was having 3 levels, I told you. First was national level, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एंड संस्थागत स्तर, है ना? So first is national level. एक बार रिवीजन ले रहे हैं फटाफट से। नेशनल, स्टेट लेवल एंड देन इंस्टीट्यूशनल लेवल। सो द लास्ट वन इज द इंस्टीट्यूशनल लेवल। नाउ उसमें मैंने बताया था 4 आ जाएंगे, कौन कौन से? नेशनल, एनएमए, पीएबी, फुल फॉर्म्स आर ऑलरेडी टोल्ड टू यू, है ना, एनएसडी एंड देन टीएसजी, जो भी है वो, ठीक है। इसमें 3 बताए थे, इसमें भी मैंने, इसमें 2 बताए थे। यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज आ सकती है, इंस्टीट्यूशंस में, एंड कॉलेजेस आ सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट, just a moment, I'll come to the next page because this is going to be a mess, right? So for national level, for state level and for institutional level, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं? कॉलेजेस आ जाते हैं। क्लियर? कॉलेजेस हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, दोनों में ही 2-2 होंगे। क्या होंगे बताइए? इसका आंसर किसी को याद है? अगर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, यहाँ देखे बिना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेकंड इज, और इनकेस किसी कोई लिख नहीं पाया है, मैंने इतना जल्दी आंसर बता दिया, तो एटलीस्ट अगर आपके माइंड से मैच कर रहा है, रियली गुड, मींस यू आर रिवाइजिंग एंड यू आर जस्ट स्टडिंग वेल, आई गेस, एटलीस्ट फॉर दीज टॉपिक्स एटलीस्ट, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपने वो रिवाइज किया तो इट्स रियली गुड, नो? सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड सेकंड इज PMU, दैट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। इस तरह से इसमें 3 बताए थे मैंने, 1 2 3। व्हाट वाज द फर्स्ट? SHEC, दैट इज स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। साथ में और 2 बताए थे, है ना, SPD एंड देन लास्ट वाला कौन सा था? TSG, जो कि स्टेट लेवल पे था। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट इसमें था, है ना, NMA और PAB भी था। Full forms are given, you can just check out iCard here and just watch the videos over there, or simply you can visit the channel and can just check out the video series there, okay? So it's like this, and there are 2 more, that is TSG or NPD. Clear? The students who have actually revised, they will get to know कि मैं क्या लिख रही हूँ। बाकियों को शायद नहीं समझ आया मैम कर क्या रही थी, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे जा रही, फुल फॉर्म्स तो बता ही नहीं रही है। आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज दिस काइंड ऑफ वेरी क्विक रिवीजन, सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू सो दैट द थिंग्स मे बी गेटिंग क्लियर टू योर माइंड, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए माइंड में, ठीक है? बट आई विल जस्ट गोना गो अहेड विद द फर्दर टॉपिक्स दैट वी वुड बी स्टडीइंग टुडे, ओके? सो I told you that we would be studying guiding principles. Last sessions में मैंने किसी maybe about few lectures, इससे कुछ lectures पहले, maybe just let me check, हाँ मे बी जो भी लेक्चर था डजेंट मैटर, तो मैंने जिस लेक्चर में कराया था गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, लेकिन इंट्रो में भी क्या प्रॉब्लम आ गई? टर्म्स वर नॉट क्लियरली विजिबल टू यू स्टूडेंट्स। आई एम जस्ट रीडिंग आउट फ्रॉम हेयर एंड एक्सप्लेनिंग यू, बट वो क्लियरली दिख नहीं रही थी। सो वंस समथिंग इज विजिबल तो हमको थोड़ा और बेटर समझ आता है। सो नाउ आई जस्ट रिटन दीज आउट इन क्लियर, वो पहले वो पिक्चरल फॉर्म में थी, है ना, तो उस तरह से आपको ठीक से नहीं दिख रही थी, तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट अगेन। एंड सिंस क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना था, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, सो इट्स ओके, वी आर जस्ट डूइंग इट अगेन and we'll get to know better this time. So रूसा की ही बात कर रहे थे, रूसा की इंस्टीट्यूशनल हायरार्की को हम समझ चुके हैं कि कैसी है, 3 लेवल्स पे है एंड सो ऑन। नाउ इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? सिद्धांतों का मार्गदर्शक, है ना। सो क्या है? पहले है रिसर्च, फंडिंग, इंसेंटिवाइजिंग, इंसेंटिवाइजिंग टर्म निकली है इंसेंटिव से, इंसेंटिव पता है ना। एग्जाम्पल के लिए हम MNC में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं ताकि हम और आगे बेटर करें।
decision, autonomy, governance and development. So how many factors we do have? 7 factors, 7 guiding principles. How many principles? 7 guiding principles are there under रूसा. अभी तक 7 दिख रहे हैं हमें, है ना? अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पे स्टडी करना है. रूसा 2.0 के बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं तो उसको भी नहीं लाएंगे इन पिक्चर. Once we'll study then हम ओवरऑल लेके चलेंगे सारी चीजें. But as of now there we can say that there are 7. Okay. In case it comes to be, है ना, उस टॉपिक में. क्लियर है? सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स कितने हो गए हमारे? 7 हो गए रूसा के, है ना, जो मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत है. क्या है? शोध करना, दैट इज रिसर्च विथ पोर्शन फंडिंग, है ना. रिसर्च करना हमारा बेसिकली सिंपल. देखो कैसे प्रिंसिपल बोला जा रहा है ना कि रूसा में पहले फैक्टर्स देख लीजिए. प्रोत्साहन देना, वही मैंने बताया, इंसेंटिव से रिलेट हो गया, इंसेंटिवाइजिंग. फैसला, डिसीजन, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, फ्रीडम. जहां भी ऑटोनॉमी वर्ड यूज हो वहां फ्रीडम की बात हो रही है. फ्रीडम ऑटोनॉमी मतलब सेम ही है, टर्म्स आर डिफरेंटली यूज्ड. ओके. शासन, गवर्नेंस, development, vikas. So these are the 7 factors in Hindi and English given to you. Now we'll study little bit in detail about these factors. फिर उनको एक्सप्लेन तभी कर लेंगे, साथ साथ समझेंगे, बेटर होगा. सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैंने बताया यूज आगे. सो पहला मैंने बताया था रिसर्च. तो क्या है कि रूसा का क्या प्रिंसिपल है, किस नियम पे काम कर रहा है, कौन से ऐसे सिद्धांत है जो मार्गदर्शन कर रहे हैं. कह रहे हैं कि हाँ, फोकस ऑन क्वालिटी एंड रिसर्च, गुणवत्ता, क्वालिटी एंड अनुसंधान पर ध्यान दे. कि मतलब हमको गुणवत्ता मतलब क्वालिटी पे ध्यान देना है और रिसर्च पे देना है. यू नो कई बार हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं. माना हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, मैम ने बोला कि बच्चा सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाने, मैं 100 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रही हूँ. इन केस आई एम गिविंग यू 100 क्वेश्चंस एज होमवर्क टू डू फ्रॉम होम. यू नो आपको 100 MCQs ट्राई करने हैं. आपने कर लिए, एक बच्चे ने फटाफट 100 के 100 रैंडमली मार्क कर दिए. एक ने किए 35 लेकिन ध्यान से किए. एक ने 100 में से 80 किए लेकिन ध्यान से किए. सो हु वुड बी हैविंग क्वालिटी? द स्टूडेंट जिसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना, वो भी ध्यान से. 35 वाले को भी कुछ ना कुछ क्वालिटी में नहीं माना जाएंगे क्योंकि 100 में 35 ट्राई किया तो बहुत ही कम किए. मैंने 100 दी है, मीन्स कुछ ना कुछ तो मेरी एक्सपेक्टेशन रही होगी ना कि हाँ बच्चा 100 कर सकता है. कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो 100 कर सकता है और मे बी नियर बाय कर सकता है, तभी तो मैंने 100 क्वेश्चन दिए. तो विच स्टूडेंट इज हैविंग क्वालिटी? जिसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी ध्यान से. जिसने 100 ऐसे रैंडमली मार्क कर दिया वो तो गया. देयर इज नो क्वालिटी, पुअरनेस, है ना, चीप, मतलब यू नो नॉट चीप एग्जैक्टली यहाँ पे यूज किया जाएगा, लेकिन हाँ द होमवर्क इज वेरी प्योर. स्टूडेंट जिसने 35 किया ठीक है, व्हाट टू से, यू नो एवरेज भी नहीं बोल सकते क्योंकि 35 आउट ऑफ 100 इज इवन लो, है ना. सो चीज समझ आ रही है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रूसा के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कि फोकस ऑन क्वालिटी एंड रिसर्च, की गुणवत्ता और अनुसंधान पर ध्यान देना है. ये ऐसे प्रिंसिपल्स है जो गाइड करेंगे कि रूसा को कैसे ऑपरेट होना है. तो रिसर्च और क्वालिटी पे फोकस किया जाए, ये पहला प्रिंसिपल है, ये पहला नियम कह सकते हो. नियम के सेंस में समझोगे ना, सिद्धांत और मार्गदर्शन वगैरह टर्म्स माइट बी डिफिकल्ट. सो ऐसे कौन से नियम है, द रूल्स. पहला, फोकस ऑन क्वालिटी एंड रिसर्च. क्लियर? जो मैंने रिसर्च टर्म बताई थी पहले, क्लियर थी ना. फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल वाज रिसर्च, है ना. सेकंड, नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम बेस्ड डिपेंडेंट फंडिंग. सेकंड मैंने फैक्टर बताया था फंडिंग विथ पोषण. तो क्या बोल रहे हैं, मानक आधारित और परिणाम निर्भर वित्त पोषण. इस टर्म का डिस्कशन हम टॉपिक में जब रूसा का इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब भी कर चुके हैं कि हाँ, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग या सेंट्रली फंडिंग किन स्टेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज को की जाएंगी विच आर एलिजिबल, है ना. सो यही बोलना चाह रहे हैं नॉर्म बेस्ड, और नॉर्म पे बेस्ड होगी हमारे जो नियम है जो फिक्स किए गए मानकों पे, जिन स्टैंडर्ड्स को हमने बोला है उन स्टैंडर्ड्स को जो पूरा करेंगे यूनिवर्सिटीज उन्हीं को फंडिंग दी जाएगी. तो ये सेकंड फैक्टर में यही बात कर रहे हैं कि फंडिंग किनको दी जाएगी, जो नॉर्म फंडिंग जो होगी दैट वुड बी नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट. मतलब नॉर्म तो नियमों को तो पालन किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स जो फिक्स हैं उनके बेसिस पे तो की जाएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आउटकम डिपेंडेंट. मतलब हमने फंडिंग कर दी लेकिन आउटकम क्या आया, कोई अच्छा आउटकम नहीं आया यूनिवर्सिटी का इसके बाद भी, तो उसकी फंडिंग गई, वुड बी काइंड ऑफ कैंसल्ड, उनको नहीं दी जाएगी. तो इट वुड बी डिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि सबको ही दी जा रहा है, यार ये तो बेसिक हो गया तो इसको और फंडिंग दो, नहीं. सो आउटकम डिपेंडेंट भी होगी हमारी फंडिंग, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना. इट वुड बी नॉर्म बेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. पहले तो नॉर्म के बेसिस पे दी जाएगी, लेकिन सेकंड नंबर पे डिपेंड करेगा कि आउटकम कैसा आ रहा है, तो इट वुड बी आउटकम डिपेंडेंट एज वेल. क्लियर है? पहला फैक्टर था गाइडिंग प्रिंसिपल, पहला था रिसर्च, तो क्वालिटी एंड रिसर्च, है ना, मैंने बताया था क्वालिटी एंड रिसर्च पे हमें फोकस करना है. सेकंड इज नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग, ऐसी फंडिंग जो कि नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट है. थर्ड इज इंसेंटिवाइजिंग, बताया था मैंने कि प्रोत्साहन देना, इंसेंटिव्स देना, लेकिन साथ में एक टर्म और यूज करी मैंने यहाँ पर. इंसेंटिवाइजिंग के साथ साथ मैंने लिखा है एंड डिसइंसेंटिवाइजिंग.
इंसेंटिवाइजिंग तो है ही, लेकिन डिसइंसेंटिवाइजिंग मतलब क्या हो गया कि प्रोत्साहन तो देना है लेकिन हतोत्साहित भी करना है। मतलब क्या है कि इन केस कोई यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस अच्छी दिख रही है, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग फंडिंग, सो हम उसे इंसेंटिवाइज करेंगे, हम उसे प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जहाँ पे रिजल्ट्स डाउन हैं वहाँ डिसेंटिवाइजिंग आ जाएगा, डी इंसेंटिवाइजिंग हो जाएगा, वहाँ पे हतोत्साहन किया जाएगा। रीड करते हैं क्या लिखा है मैंने। रूसा इंसेंटिवाइजेस एंड डिसेंटिवाइजेस स्टेट एक्शंस, स्टेट के एक्शंस को सेंटिवाइज भी कर सकती है, इंसेंटिवाइज भी, डिसइंसेंटिवाइज भी कर सकती है, आई एम सॉरी, इंसेंटिवाइज एंड डिसइंसेंटिवाइज भी कर सकती है स्टेट के एक्शंस को। नॉट ओनली इज अ कंप्लायंस टू रूल्स regulations and fulfillment of norms supported by incentives, but non-performance or non-fulfillment of prerequisites and norms invite reduce allocations for states and institutions. In short यही बोला गया है, जहाँ पे norms का follow नहीं किया जाएगा और जहाँ पे progress अच्छी नहीं दिखेगी वहाँ पे state हो चाहे कोई institution हो, वहाँ पे क्या होगा, जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं दैट वुड बी विदड्रॉन, वो वापस ले लिए जाएंगे, एक टाइप से वो दिए ही नहीं जाएंगे, इट वुड बी काइंड ऑफ टेकन बैक, काइंड ऑफ हतोत्साहन किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा जहाँ पे ये चीजें दिख रही है, जहाँ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, साथ में गुड रिजल्ट्स भी हैं, बट नॉन परफॉर्मेंस और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ परक्यूसाइट्स एंड नॉर्म्स इनवाइट्स, मतलब अगर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो वहाँ पे रिड्यूस एलोकेशन होंगे टू स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। डिपेंड करता है, क्या पता बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया जाए, पर शायद बिल्कुल विड्रॉ इनिशियली नहीं होगा, बट इट वुड बी एक्चुअली, मैंने कहा ना वो रूल्स पे डिपेंड करता है, मैं बोल दूँ कुछ वो मैटर नहीं करेगा, वट एवर इज देयर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर रूसा अभियान के नॉर्म्स जो हमने बना रखे हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे विड्रॉ किया जाएगा, कहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा, कहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। गेटिंग टू नो, यस, बिकॉज यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी इक्वली मिल रही है ना, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हो नेट के लिए एलिजिबल हो, माना सबने अपना पीजी क्लियर कर लिया या फाइनल ईयर में यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन, तो यू आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, पढ़ो अच्छे से, एग्जाम क्लियर करो। यू कांट से कि ये था वो था, मुझे सिलेबस नहीं पता था, एक को पता था, इट्स नॉट दैट ना, यू नीड टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल और बेसिकली बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा विच इज रेलिवेंट, सो एवरीथिंग डिपेंड्स, ओके। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट इंसेंटिवाइजिंग एंड डिसइंसेंटिवाइजिंग का मतलब क्या हो गया कि ये प्रिंसिपल गाइड करेगा, तो क्या अगर परफॉर्मेंस अच्छी है और साथ में नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जहाँ परफॉर्मेंस नहीं है और साथ में नॉर्म्स भी फॉलो नहीं है जो पहले से डिसाइडेड है, देन इन दोज केस द इंसेंटिव्स वुड बी विड्रॉन, वापस लिए जाएंगे या फिर रिड्यूस कर दिए जाएंगे। इट वुड बी रिड्यूस मीन्स वो कम कर दिए जाएंगे। क्लियर है? थर्ड फैक्टर ऑल्सो रिसर्च, नेक्स्ट फंडिंग एंड देन इंसेंटिवाइजिंग। तो एग्जैक्टली कंप्लीटली ऐसे हैं वो शॉर्ट में दिए थे ताकि आपको स्टार्टिंग में समझ आए। नाउ विल जस्ट स्टडी इन डिटेल दैट वी आर इवन डूइंग। नाउ द फोर्थ फैक्टर, नाउ द फोर्थ गाइडिंग प्रिंसिपल इज अ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ये दोनों अलग टर्म नहीं है, आई एम सॉरी, दीज टर्म्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अपॉलिटिकल, अपॉलिटिकल नहीं है, अपॉलिटिकल नहीं है, इट्स अपॉलिटिकल सिंगल, दैट इज अराजनीतिक, अपॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। टर्म थी, इससे पहले कौन सा फैक्टर था, एक और कौन सा एक और गाइडिंग प्रिंसिपल था हमारा, डिसीजन, निर्णय, निर्णय बोलते हैं ना फैसला। सो अराजनीतिक निर्णय लेना मतलब जहां पे पॉलिटिकल इफेक्ट्स नहीं आएंगे ऐसे डिसीजन लेना, पॉलिटिकली नहीं सोचा जाएगा, इट वुड बी टेकन अनबाइज्ड वे, मतलब कुछ बाइज नहीं होगा एंड पॉलिटिकली इफेक्ट नहीं होंगे डिसीजंस। क्लियर? आई होप यस, ठीक है। नाउ द फिफ्थ गाइडिंग प्रिंसिपल सेज दैट ऑटोनॉमी, दैट इज स्वायत्ता, फ्रीडम। ऑटोनॉमी इज एन इंडिस्पेंसेबल कंडीशन फॉर क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना, जिम्मेवारी के लिए और क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के लिए फ्रीडम होनी जरूरी है। मतलब क्वालिटी लाने के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग, इनकेस मुझे बोलती मैम आप ऐसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ाओगे, यू विल नॉट मूव मच, तो हाउ वुड आई डू, मतलब बहुत सारे अगर मुझ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगे मींस मेरी फ्रीडम ले ली गई, हाउ वुड आई डू। एंड अकाउंटेबिलिटी साथ में बोलते हैं वो टर्म। सो मतलब कुछ ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों ही मैटर करती है, ड्यूटीज भी होंगी साथ में राइट्स भी होगा, तभी तो आई कैन ऑपरेट प्रॉपर्ली, राइट? Otherwise, it would be kind of a frustrating situation for me. Maybe I will not be able to operate the way I want to or the way I can do better. So, quality and accountability के लिए autonomy is also required, and which is the ultimate motive. That quality is the ultimate motive of the RUSA in the state universities. So, क्या बोल रहे हैं? Autonomy is also a guiding principle कि appropriate level की accountability on quality के मतलब accountability दी जाए ताकि quality attain की जा सके. Kind of that way they are saying. Okay. So,
नाउ वी विल जस्ट स्टडिंग लिटिल मोर अबाउट ऑटोनॉमी बिकॉज है इसके अंदर, है ना. कैसे बोल रहे हैं, सम की कंसर्न्स इन एनफोर्समेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी आर एज फॉलोस. कुछ कंसर्न बता रहे हैं, कुछ मुद्दे बता रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में फ्रीडम की बात कर रहे हैं उसके सेंस में. पहला है रिविजिटिंग द एक्ट्स, मतलब फिर से एक्ट्स पे वापस जाना. क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ नीड टू रिविजिट द एक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज टू सी इफ देयर आर सम क्लॉजेस डिटरमिनेंटल टू देयर ऑटोनॉमी. मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज को हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग वो स्टैब्लिश हुई है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो एक्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो स्टैब्लिश हुए हैं, उनको हम देखेंगे क्या वो मना तो नहीं करे फ्रीडम के लिए, तो वो भी मैटर करता है ना. माना कोई स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई है, लेकिन कोई लॉ के जिसके अंतर्गत हुई है उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम जहाँ पे हम देना चाह रहे हैं वो नहीं है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, वो मना कर रही है उस चीज के लिए, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा. ठीक है ना, कहीं वो मना तो नहीं कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए. मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई नियम जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज की फ्रीडम को रोक तो नहीं रहा है, जिससे कि वो आगे नरिश नहीं कर पा रही है, फ्लरिश नहीं कर पा रही है, राइट. So it's something that. Next is streamlining the recruitment process. स्ट्रीमलाइनिंग दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब भर्ती के प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है. मैंने बोला कि रूसा की बात कर रहे थे, वहां पे हमें क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं चाहिए, क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग दोनों की बात हो रही है. क्वालिटी टीचिंग की भी बात हो रही है कि टीचिंग जो की जाए दैट मस्ट हैव क्वालिटी, है ना. तो इसीलिए बोल रहे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जस्ट रीड फ्रॉम हियर दैट यूनिवर्सिटीज मस्ट हैव द ऑटोनॉमी टू रिक्रूट द मोस्ट कॉम्पिटेंट फैकल्टी as per let down procedures and purely on the basis of merit, है ना. कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाए, ऐसे कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाए जो कि क्वालिटी नेचर के हैं, जिनका जिनसे अगर टीचिंग वो देते हैं तो इट वुड बी ऑफ क्वालिटी नेचर. माना कई बार ऐसा भी हो सकता है एक स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं बट द स्टूडेंट इज नॉट गुड इन टीचिंग. सो टीचर बनने के लिए सिर्फ वही थोड़ी ना है कि तुम्हारे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, उसके अलावा एक टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड होता है, फिर आपसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो भी है उसको फॉलो करके अच्छी क्वालिटी टीचर्स को रिक्रूट किया जाए, है ना. गाइडिंग प्रिंसिपल तो ये एक टाइप से, बिकॉज दिस वुड ऑल्सो अफेक्ट कि हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज की ग्रोथ पे, क्योंकि टीचर्स आर एक काइंड ऑफ पिलर हो गए ना, फैकल्टीज आर काइंड ऑफ अ पिलर फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. मतलब बेसिकली काइंड हो क्या गए, दे आर, है ना. सो दे आर द मेन फैक्टर्स. क्लियर. सो नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडीज. अब क्या बोल रहे हैं, ये तो पॉइंट बहुत अच्छा है दैट मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडीज, जो गवर्न करती है उन बॉडीज की मेंबरशिप. द बॉडीज शुड प्रिडोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड. मतलब जिनको भी अगर जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जिनको भी मेंबरशिप दी जा रही है गवर्निंग बॉडीज की, तुम गवर्न कर सकते हो इन सब चीज़ों को यूनिवर्सिटीज़ में. इनके स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, वहाँ पे आप गवर्निंग राइट्स रखते हो. तो जो लोगों को हायर किया जा रहा है ना, गवर्न एक मेंबरशिप के लिए कि हाँ आप मेंबर बन सकते हो, यू कैन गवर्न. तो ऐसा नहीं किसी भी सेक्टर से आ गया वहाँ का एक्सपर्ट है, नहीं, वो अकेडमिशियंस काइंड ऑफ हो, मतलब अकेडमिक बैकग्राउंड से ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू से, कि मतलब ये प्रिंसिपल्स बना दिए हैं कि हाँ इन्हीं नियमों को मान के चलेंगे तो हमारी इंश्योर जो हमारे टारगेट्स हैं वो इंश्योर हो जाएंगे, वो हमारे जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, दोज वुड बी फुलफिल्ड वंस दीज आर फॉलोड. सो दीज आर काइंड ऑफ principles, these are the principles that must be followed, that shall be followed. So membership of governing bodies, that is these bodies should predominantly consist of members from academic background. ऐसे मेंबर्स शामिल हो जो कि एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा लिए, मतलब ठीक है, दे मस्ट बी ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट में भी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टडीज की बात करें तो एकेडमिक बैकग्राउंड होना मस्ट है. क्लियर. दिस व्हाट दे सेइंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको इजीली समझ आ गया, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट हाइलाइटिंग दिस. कई बार गवर्निंग, सम स्टूडेंट्स फाइंड इट समटाइम्स बोरिंग बट इट्स नॉट बोरिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेग्रीगेटिंग दैट होल टॉपिक ऑफ रूसा इन सो मेनी सीरीज. वरना मैं एक ही बार में करा देती आपको, सीधा फटाफट से बता दिया, आपको नहीं समझ आ रहा है, इट्स योर चॉइस, बट आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो दैट you can easily understand and answer the questions and attempt the questions like that, means so that you can easily have it done, आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए. So the next point says that institutional leadership, that is, it is the duty of the vice chancellor to safeguard the autonomy of the university. जो भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंस्टीट्यूशनल या किसी यूनिवर्सिटी की फ्रीडम को सेव करे, उसको बचा के रखे, है ना, एक टाइप से सेफ गार्ड करे. द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अपॉइंटिंग सिविल सर्वेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ना अभी, एज हेड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नीड्स टू बी रिव्यूड.
ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है आजकल, एक ट्रेंड बन गया है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको बनाया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला ना मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडीज, तो उनको हेड्स बनाया जा रहा है, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जा रहा है हेड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो उसको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए कि हाँ शुड वी एक्चुअली डू इट और नॉट। ठीक है, हम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स आर वेरी केपेबल, बट वी मस्ट नीड टू रिव्यू कि ऐसा नहीं हम किसी को सिविल सर्वेंट को हायर तो कर रहे हैं, उनको अपॉइंट तो कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वट एवर, बट क्या I think you're understanding, are they enough capable? Is this the decision that we are taking is actually correct? So that must be reviewed. Clear है? इसलिए ऊपर वाले पॉइंट में बोला गया था एक तो कि एकेडमिक बैकग्राउंड से हो तो बढ़िया है, इनकेस जो ट्रेंड चल रहा है कि सिविल सर्वेंट्स को ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ ग्राउंड्स पे ले रहे हैं, लेकिन अगर ले रहे हैं तो एक बार उसको फिर से अपने मद्देनजर रखा जाए, उसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए कि हाँ जी द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग टू अपॉइंट देम एज हेड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और व्हाटसोएवर इज fine, it's very good, is in the positive way, or basically it would be good for the future or like that, मतलब उनके आने वाले टाइम के लिए अच्छा रहेगा, it would be positive in short, है ना? क्लियर हो रहा है कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैंने बताया अभी? पहला फोकस क्वालिटी और रिसर्च पे करना, दूसरा इज नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग, नॉर्म पे बेस्ड तो होगी लेकिन आउटकम डिपेंडेंट भी होगी, जैसे मैंने इंसेंटिवाइजिंग और डिस इंसेंटिवाइजिंग के पॉइंट में बताया, है ना? ये वाला क्लियर ही है आपको। प्रोत्साहन और हतोत्साहित करना, अब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मतलब अराजनीतिक निर्णय होंगे, ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट होगा उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे डिसीजंस। ऑटोनॉमी फ्रीडम के मैंने पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, रिविजिटिंग दी एक्ट्स, स्ट्रीमलाइनिंग दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप विल मैटर, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की लीडरशिप जो दी जा रही है किसी को, वो ऐसे ही किसी मतलब आजकल ट्रेंड हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए बोला है कि सिविल सर्वेंट्स को रखा जा रहा है तो उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हाथ में है, उसके वाइस चांसलर के हाथ में है कि यहाँ की फ्रीडम को कैसे इंश्योर किया जाए। वहाँ पे फ्रीडम के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्रीडम मतलब ऐसे कोई छूट वाली बात नहीं है, बट देयर सो मेनी थिंग्स दैट वुड बी रेगुलेटेड एंड गवर्नड, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो ऑपरेट होती है इस तरह से, तो डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस, नेक्स्ट पॉइंट था ना हमारा गवर्नेंस, तो डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस मतलब प्रकटीकरण आधारित शासन, जो गवर्नेंस है, जो कंट्रोल है, जो शासन है वो रिवील्ड हो, मतलब सबको पता हो। कैसे बोलना चाह रहे हैं? द डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस मस्ट बी फॉलोड बाय इंस्टीट्यूशंस विद रिगार्ड टू देयर डिसीजंस एंड आउटकम्स, मतलब कह रहे हैं जो डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस है वो फॉलो होना चाहिए बाय इंस्टीट्यूशंस विद रिगार्ड टू देयर डिसीजंस एंड आउटकम्स। रूसा envisages greater participation of all the stakeholders, याद आ गया मैंने पॉइंट बताया था स्टेक होल्डर्स का पिछले वाले सेशन में, जितने भी स्टेक होल्डर्स उनकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना? कि रूसा क्या है, सभी स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, वेयर द इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्वालिटी, नॉट जस्ट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज बट ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। इन शॉर्ट प्रकटीकरण वर्ड आ गया यहाँ पे, डिस्क्लोजर आ गया, मतलब शो करना है, रिवील्ड, है ना? सो व्हाट डू दे वांट टू से फ्रॉम हियर, जो शासन किया जा रहा है, जो भी गवर्नेंस की जा रही है, जो भी रेगुलेशन या कंट्रोल हो रहा है, वो सारा डिस्क्लोज्ड हो, नॉट ओनली टू गवर्निंग बॉडीज जो गवर्न कर रहे हैं उन्हीं को नहीं बताना है, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को एंड सोसाइटी को भी पता हो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ऑल दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब एक शेयर होल्डर होता है, एक स्टेक होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस। शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर में डिफरेंस है थोड़ा। शेयर होल्डर जिसने शेयर लिया है, स्टेक होल्डर जिनका भी इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स में सब आ जाएंगे, पब्लिक भी आ जाती है, जैसे सोसाइटी में बोल दिया मैंने, हैं स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, स्टेक जिनका इंटरेस्ट है, पेरेंट्स हो गए, होंगे अल्टीमेटली, उनके वर्ड्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो व्हाई वोंट दे बी इंटरेस्टेड एंड व्हाई वोंट दे बी अ स्टेक होल्डर, दे वुड आल्सो बी दी स्टेक होल्डर्स। क्लियर? So where the institutions are responsible for their quality, not just to the regulatory authorities, उनकी quality सिर्फ regulatory authorities के लिए ही मायने नहीं रखेगी, it would be also of importance for not just to the regulatory authorities but also to the students, parents and the society. Clear है मैंने क्या बोला? This is what I'm trying to say. Okay? So now, a policy of full disclosure and clean governance is the first step towards establishing such a system of higher education. मतलब कहते हैं ना एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। सो फुल डिस्क्लोजर की जो पॉलिसी है और क्लीन गवर्नेंस की है, वही एक फर्स्ट स्टेप है इन एक अच्छे हायर एजुकेशन सिस्टम के सेटअप में। क्लियर है ना कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, इन शॉर्ट, है ना? ट्रांसपेरेंसी अच्छी मानी जाती है कि कुछ छुपा नहीं रखा है, इट्स ऑल इम्पार्शियल, है ना? बाइज्ड नहीं है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट
द पॉइंट सेइंग नाउ ये क्लियर हो गया गवर्नेंस। तो गवर्नेंस हमारा डिस्क्लोजर बेस्ड होना चाहिए, वहां पे सिर्फ गवर्नेंस लिखा था गाइडिंग प्रिंसिपल में, लेकिन हम समझेंगे कैसे कैसा गवर्नेंस। इन हेडलाइन से भी क्लियर हो रहा है कि डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस में किस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात की थी, तो विकास हो रहा है, लेकिन विकास कैसा होगा? जो कि समानता पे आधारित होगा। ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट विच इज बेस्ड ऑन इक्विटी और इक्वालिटी। इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स must form an essential part of any development or expansion plans, both at the state and institutional level. So, मतलब ये कह रहे हैं कि इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, जो भी डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए वो सारे लेवल पे इक्वल हो। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तो उस सेंस में कहा जाएगा दैट कि इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो भी हैं वो हमेशा डेवलपमेंट का एक खास हिस्सा होने चाहिए। क्या? इक्विटी किसी भी डेवलपमेंट का खास हिस्सा बननी चाहिए, चाहे कोई एक्सपेंशन है चाहे कोई भी डेवलपमेंट है, उन सब में इक्विटी, समानता एक मेन फैक्टर होना जरूरी है। क्लियर? किसी भी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी या उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस को इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है कई बार, है ना, दैट वे वी कैन से दैट वे। क्लियर है? सो ये मतलब है इन सारे पॉइंट्स का। क्या आप सभी को क्लियर हुए जो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैंने बताए आज? आई होप यस, है ना। सो ये सारे के सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए थे आपको, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दीज आर 7। रिसर्च, फोकस ऑन क्वालिटी एंड रिसर्च, फंडिंग, है ना, नॉर्म बेस्ड होगी, आउटकम बेस्ड होगी। नेक्स्ट इंसेंटिवाइजिंग में डिस इंसेंटिवाइजिंग भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है परफॉर्मेंस को फॉलो करें। परफॉर्मेंस कैसी है? नॉन परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस नहीं की जा रही जैसे हमने एक्सपेक्ट किया, ये परफॉर्मेंस नहीं है, या साथ में नॉर्म को फॉलो नहीं किया है, पर साइड से पहले से बनाए हुए नियम वगैरह उनको भी अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो देन इट वुड बी रिड्यूस्ड, देन इंसेंटिव्स वुड बी रिड्यूस्ड और मे बी इवन टेकन बैक, काइंड ऑफ, मतलब विड्रॉ कर लिए जाएंगे, वहां नहीं दिए जाएंगे। डिसीजन जो होता है, फैसलों की बात की जा रही है। ये पॉइंट क्लियर है किसी को? डिसीजन की बात करें तो अपॉलिटिकल होंगे, अराजनीतिक, है ना। नेक्स्ट ऑटोनॉमी, फ्रीडम बताया मैंने, रिविजिटिंग द एक्ट्स वाली बात हो गई, और बहुत सारे पॉइंट्स में बताए थे, मेंबरशिप, लीडरशिप वगैरह वाले पॉइंट्स थे ना। गवर्नेंस मैंने बता दिया, शासन कैसा होगा, है ना, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो एक टाइप से प्रकटीकरण वर्ड यूज किया था, दैट इज डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, विकास जो होगा वो इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, मतलब समानता में होना चाहिए। चाहे कोई भी एक्सपेंशन है, कोई भी विस्तार हो रहा है, या कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी विकास हो रहा है, तो इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी समानता पे आधारित। क्लियर है? सो ये सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रूसा, जिसके अकॉर्डिंग रूसा इतना आगे डेवलप हो रहा है, एंड इसके सेकेंड वर्जन मैंने बताया जैसे आया है ना, रूसा 2.0 पढ़ेंगे। कोई चीज़ अगर सही लेवल पे, क्योंकि उसके अगर गोल्स, फंक्शंस वगैरह, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से डिफाइन होते हैं, तो वो चीज़ें, प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें अगर अच्छे से डिफाइन होती है, फिर उसको अच्छे से लागू किया जाता है। आई एम नॉट गेटिंग द इंग्लिश टर्म एज ऑफ नाउ एकदम से। हाँ, अगर अच्छे से उन्हें अप्लाई किया जा रहा है, नॉट अप्लाई इवन, तो उनको अगर अच्छे से लगाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, उनको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, वी आर फॉलोइंग दोज वेरी नाइसली, सो इट वुड, वी वुड डेफिनेटली अटेम द एम्स एंड गोल्स। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, इन केस यू आर स्टडिंग वेल, yes, you'll get your targets, you'll be reaching your target. So really अच्छे से सबको रिवाइज करना है इस सारे सीरीज को। अगर कोई पुरानी सीरीज देखनी हो, आई कार्ड पे जाइए या फिर इस चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे यू विल बी गेटिंग टू सी द वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ पे आपको हेडिंग मिल जाएगी, दैट वे यू कैन सी एंड देन रिवाइज इट। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।